امام بارگاہ ملابوچھن ماگام میں انجمن شرعی شیعان کی زیر نگرانی چلائے جا رہے مکتب میں یوم ولادت باسعادت حضرت امام مہدی علیہ السلام اور شب برات کی مناسبت سے جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے کی صدارت آغا سید حسن الموصلی نے کی۔ اس موقع پر مختلف مکاتب کے بچوں اور کافی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ منعقدہ تقریب میں طلباء نے تعلیمی مظاہرہ کر کے مختلف مصنوعات کے ذریعے سے سیرت امام مہدی پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر آغا سید حسین الموصلی نے خطاب کر کے موجودہ دور کے تناظر میں سیرت امام اور اہمیت پر گفتگو کی۔ آغا سید حسین نے امام مہدی کی سیرت پر چلنے کی تلقین کی۔ لوگوں نے بچوں کے تعلیمی مظاہرے پر ان کی صلاحیتوں کی ستائش کی۔ جہاں فتنہ و فساد اور تباہی کی خبر دی گئی ہے، وہاں امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام نجات بن کر آئیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جن میں لوگوں کا باطن گندا ہوگا اور ان کا ظاہر خوبصورت ہوگا، ان کے ہر کام میں ریاکاری ہوگی، اللہ کی طرف سے ان پر بہت عذاب نازل ہوگا۔ ہمیں غور کر دینا چاہیے کہ ہم اس میں نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے راستے پر چلیں اور امام کے حقیقت پیروکار بنے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ 15 شعبان امام مہدی آخر زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہے، تو میں آپ سب کو اس موقع پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ ہمارے مکتب میں آج اسی بات پر پروگرام ہے اور ہمیں یہی چاہیے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت پر چلیں اور ہم ان کے منتظر ہیں۔ آج دنیا کو ضرورت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو پہچان لے اور ان کی سیرت پر چلے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کو جلدی ظہور کرے۔ امام زمانہ ہر وقت ہمیں حاضر اور ناظر ہے۔ اگر انسان کو اعتقاد ہوگا کہ یہ نمائندے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہر ایک انسان کے حرکات کو دیکھتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی خدمت کریں۔ امام ہمیں یہی سکھاتا ہے، جس طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتا ہے۔ ڈی ڈی سی ممبر آری پل ترال منظور احمد گنائی نے تحصیل آری پل کے دور افتادہ بستیوں جن میں ززبل، سونائیڈ اور جواہر پورہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے یہاں مختلف محکموں کی جانب سے جاری کام کاج کا جائزہ لیا اور اس دوران ڈی ڈی سی ممبر نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے سوناڈ کی بستی تک رابطہ سڑک کو تعمیر کرنے کی منظوری دی، جس پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک پر کام جاری ہے، تاہم چند مقامات جن زمینداروں کی زمین سڑک میں آئی ہے انہیں باندھ یا سیل دینے کا لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، جس کی طرف متعلقہ محکمے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مگر دوسری طرف یہاں پہ غریبی ہیں، یہاں غریب لوگ ہیں، ان کی زمین جو اب کھودی ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس زمین کو کون بچائے گا، یہاں پہ بنڈ بھی لگنا چاہیے، ڈرینیج بھی لگنی چاہیے۔ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آج اپنی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے، اب پیسہ چھوڑنا پڑے گا، اب ان کی ڈرینیج بھی بننی چاہیے، ان کے بنڈ بھی بننی چاہیے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام کے تحت اب ہر پنچایت میں کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گاڑیاں جائیں گی اور دیہی ترقیات کچڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہیں اس سلسلے میں بلاک آفس پامپور نے اس کی شروعات کی ہے اور ہر پنچایت سے کچڑا اٹھایا جا رہا ہے اور کچڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے پرس بنائے ہیں تاکہ ہر گاؤں گندگی سے پاک رہے۔ جو پروگرام بلاک پامپور سے ہوا ہے اس میں ہم نے آلموسٹ کچھ 14 پنچایتوں میں ایک میگا ریلے شو کیا۔ اس غرض سے کیا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے کہ جو ہمارے گھر میں جو سالڈ ویسٹ نکلتا ہے اس کو ہم ہاؤس ہولڈ پہ سیگریگیٹ کیسے کریں گے۔ سیگریگیشن کے بعد جو ہم نے ڈور ٹو ڈور کلیکشن کا میکینزم بنایا ہے، ہماری گاڑی ہفتے میں 2 دن جا رہی ہے، اس کے لیے ہم نے لوگوں کو اویئر کیا کہ چونکہ یہ ہماری گاڑیاں تبھی پلے ہو سکتی ہے، تبھی چل سکتی ہے جب تک آپ ہمیں یوزر چارجز دیں گے۔ محکمہ سوشل فارسٹری کی جانب سے بانڈر پورہ اونتی پورہ میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں کسانوں کو نرسفیدے کے پودے فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر محکمے کے ریجنل ڈائریکٹر مہراج الدین ملک مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے، جبکہ ڈی ایف او پلوامہ منظور احمد کے علاوہ رینج آفیسر، بلاک آفیسر اور باقی ملازمین نے بھی موجود تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پودے کشمیر میں سوشل فارسٹری محکمے کی جانب سے حال ہی میں متعارف کیے گئے تھے، جس کے بعد محکمے کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں ان پودوں کو مختلف مقامات پر لگایا گیا۔
है। उधर बांडरपुरा के लोगों ने इलाके में इन दरख्तों को तकसीम करने पर खुशी का इजहार किया है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आज का कर रहे हैं यहाँ बांडरपुरा में। यहाँ तकरीबन 40,000 के करीब हम मेल पॉपुलर्स फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंडर फार्म फॉरेस्ट्री। इसका यही फायदा है कि ये मेल पॉपुलर है, इसमें जो कॉटन का इशू रहता है लोगों को बड़ा तजब्जुब हो जाता था, वो इससे उस खदशा से उसका खदशा दूर होता है। दूसरा ये है कि जो लोगों के पास खाली पड़ी ज़मीनें हैं, ये पॉपुलर फास्ट ग्रोइंग है। 10-12 साल में ये 40 के ऊपर से उसकी जो ग्रोथ हो जाती है। और एवरेज जो हमारा तशखीस हमने किया है, इट यील्ड्स एन इकोनॉमी ऑफ 10 to 15,000 पर फार्मर। फास्ट ग्रोइंग है, उसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंडेंट है, जिसके लिए रॉ मटेरियल यहीं से आता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के नजदीक सीरी इलाके में मिट्टी के भारी तोदे गिरने से LNT ऑपरेटर की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई है। वहीं निजी ऑल्टो कार में कम से कम 6 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए, जिन्हें इंतहाई इलाज मुआवजे के बाद मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासिर रही। वहीं देर रात को शाहराह की बहाली के बाद दरमानदा मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। वक़ार रसूल वानी का इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर को बेच देने के दर पे है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर का कहना है कि यहाँ के तमाम वसाइल फरोख्त किए जा रहे हैं। टूरिज्म ऑपरेटर्स की आउटसोर्सिंग पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वक़ार रसूल वानी ने तासरात का इजहार किया। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद से बात करते हुए वक़ार रसूल वानी ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त का डर है, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं चाहते। उधर हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को हतमी शक्ल देने के लिए आज श्रीनगर कांग्रेस भवन में मीटिंग हुई। तय प्रोग्राम के मुताबिक सोनावारी में 9 मार्च को जब 11 मार्च को श्रीनगर हजरत बल में प्रोग्राम मुनक्किद होगा। जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी कल ही गैस के रेट आप देखो कितने बड़े हैं। गैस के देखो, चावल के देखो, तेल के देखो, हर चीज़ के, सब्जियों के देखो, दूध के देखो। अब दूध पे ने GST भी लगा दिया, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये 3 मुद्दे हैं और चौथा मुद्दा हमने यहाँ पे ये जोड़ा है कि हमारी स्टेट को वापस करो। जो आपने किसी भी मैंडेट के बगैर, किसी जम्मू कश्मीर के लोगों की कंसल्ट के बगैर और अनडेमोक्रेटिकली असेंबली की परमिशन के बगैर आपने स्टेट तोड़ी, उसको यूटी बनाया। इमीडिएटली हमारी स्टेट चाहिए, इलेक्शन चाहिए यहाँ। अशोक कुल का बयान आया कल, वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जल्दी होंगे। आपको लग रहा है इलेक्शंस होंगे? करें इलेक्शन, करते क्यों नहीं है? इनको पता है कि हमारे चारों टैरों की फूंक निकल चुकी है। ये पब्लिक में आएंगे। इन्होंने 9 साल में एक काम भी पब्लिक के हक में नहीं किया। एक काम दिखाएं, सारे काम एंटी पीपुल। हम आए तो बिजली बिल माफ कर देंगे, पूरा खत्म, फिनिश। किसी BPL वाले का बिजली बिल नहीं मिल पड़ेगा, जो बेचारा भर ही नहीं सकता है। हम 10 साल से लोगों को बोल रहे हैं टैक्स माफ़ करेंगे, बिजली बिल भरो। जब किसी के जेब में पैसा ही नहीं है, वो जब भर ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको माफ़ करने के बगैर उसका चारा ही नहीं है। अभी आपने फ्रूट की इंडस्ट्री को तबाह किया, उसका जो KCC लोन है वो आपको माफ़ करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे? तो कांग्रेस रोज़गार भी देगी, KCC लोन भी माफ़ करेगी, बिजली बिल BPL का माफ़ करेगी, और जो भी यहाँ पे फ्रूट इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। जो ठेकेदारी खत्म कर चुकी है बीजेपी सरकार। देखो इन्होंने ओल्ड एज पेंशन खत्म किया, हम शुरू करेंगे। इन्होंने आंगनवाड़ियों को तनख्वाह नहीं दिया है, 4,500 उनको पिछले 20 साल से, 10 साल से कोई नहीं बढ़ा रहा है उनको बढ़ाएंगे। ये तो हम, देखो बात सुनो, हम साहब एक मिनट हम जो काम करेंगे वो पब्लिक को खुश करने के लिए। इन्होंने पब्लिक को तबाह बर्बाद किया, जेलों में डाला, बंद किया, डरा के रखा है, मुलाजमों को डरा के रखा है, मुलाजमों को इलेक्शन जीत रहे हैं, फिर भी नॉर्थ ईस्ट में जीते। इलेक्शन हम जीतेंगे जम्मू कश्मीर का, उधर की बात छोड़ो आप। वहीं बहरहाल में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के नायब चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरवरी ने की। इस मौके पर सलमान निजामी, मोहम्मद अमीन भट्ट, मुनीर अहमद भट्ट, मोहम्मद असलम गोनी,
पृथ्वी राज मनहास, धर्मचंद, इलियास बानिहाल, अरुण सिंह राजू, फारूक कटूच मौजूद थे। इस मौके पर लीडरों ने पार्टी को तमाम सतहों पर मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए तमाम वर्करों को कमरबस्ता होने और जमीनी सतह पर काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर की कलहम तामीर और तरक्की के लिए गुलाम नबी आज़ाद को रियासत का वजीर आला बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है और गुलाम नबी आज़ाद ही मुश्किलात में फंसे रियासत के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने खैरबाद कहा कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद उन्होंने पार्टी के अहदेदार बनाए, यूनिट बनाए, जोनल यूनिट, स्टेट यूनिट, प्रोविंशियल यूनिट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट, और इसके बाद अब ब्लॉक यूनिट जो है बनाना है। और ब्लॉक यूनिट के लिए हमने टीमें मुकर्रर कर दी हैं लीडर साहिबान की, और 9 तारीख से 12 तारीख तक ये हर ब्लॉक में जाएंगे और अपना यूनिट हमारी रैलीज देखेंगे तो अभी जब से हमने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, गुलाम नबी आज़ाद साहब नंबर 1 पे हैं। हमने 100 से ज़ायद जो है पॉलिटिकल रैलीज दी की, और 19 को बनहाल में है, उससे पहले शोपियन में है, सोपोर में है। तो मुझे नहीं लगता ग्राउंड में कोई भी तंजीम जो है हमारी टक्कर में इस वक्त। हमारा हर जलसा जो है 10,000 से ज़्यादा हुआ। आपने कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में रैलीज देखी, कुर्सियां खाली मिली। तो इसलिए जब लोग हमारे साथ हैं, लीडर आते हैं जाते हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां नहीं थी वो चले गए, उनको निकाला गया, लेकिन जो मजबूत लीडर हैं, चाहे सरूड़ी साहब हों, बाकी लोग हैं, आज आप हाल ही में आपने देखा आज़ाद साहब के जो बेटे हैं सदाम नबी आज़ाद साहब, एक यूथ फेस हैं, वो भी मैदान में उतरे हैं। तो अब इनकलाब लाएंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब, और वही काम करेंगे जो 2.5 सालों में अधूरे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने जिला कुलगाम के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल से जानकारी हासिल की। मेंबर मौसूफ ने मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में जिला तरक्याती कमिश्नर से मसाइल के हवाले से तबादले ख्याल किया और उन्हें अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल करने पर जोर दिया। ले रहे हैं। अभी देखिए टैक्स का बात है, भाई ये टैक्स लगाना है चुनी हुई सरकार को, अगर वो मुनासिब समझे बहस तमीज़ के बाद, बहस मुबासे के बाद, ये उन्हीं का इख्तियार है। ये एक अफसरशाही का, एक ब्यूरोक्रेसी का इख्तियार नहीं है। लेकिन देखिए अब कैसी ज़्यादतियाँ हो रही है। हमारे साथ का हमारा एक सूबा है पंजाब, 40% लोगों को वहाँ ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, 600 यूनिट फ्री है। दिल्ली में ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, और यहाँ देखिए यहाँ पर जुल्म है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर फौज की जानिब से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लोनहरे क्रापुरा में कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी सतह पर किक बॉक्सिंग में नाम कमाने वाली खिलाड़ी तजम्मुल इस्लाम और बैनुल-अक़वामी सतह की व्हील चेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इशरत अख्तर ने ख़वातीन को इस दिन के हवाले से ख़ास मशवरे दिए। इस कॉन्फ्रेंस में फ़ौजी अफसरान के अलावा स्कूली तलबा और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। It was really nice to see you, sir, and thanks to media जो हमेशा हमारी मैसेज फॉरवर्ड करती है। यहाँ पर आना, आर्मी का जो फंक्शन हुआ था, इट वाज प्रीटी नाइस। मुझे बहुत खुशी हुई, लड़कियों को प्लेटफॉर्म्स दिए गए, डिफरेंट फील्ड्स में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। इट्स वेरी जेन्युइनली, इट्स वेरी नाइस कि लड़कियाँ आगे आ रही हैं कश्मीर में, कि हर एक माँ से वो अपनी बेटी को सपोर्ट करे, लड़कियों को दबाया ना जाए सोसाइटी में, वो आगे बढ़ें और नाम कमाएं और ऊंचाइयाँ छुएं। क्योंकि ये मैसेज है कि जब आप खुद पे विश्वास करेंगी, खुद बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगी, तभी आप कुछ कर सकती हैं। बड़ा रोल रहा इंडियन आर्मी का, खासकर 52 RR का। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पास कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, व्हील चेयर नहीं थी मेरे पास, जो मुझे मतलब व्हील चेयर मिलती नहीं थी पहले, कोई हेल्प नहीं करता था। लेकिन जब मैं इंडियन आर्मी के साथ जुड़ी और उन्होंने जो हर एक साइड से जो उनसे हेल्प हो पाई उन्होंने वो किया। और लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक मतलब लड़का कर सकता है जो लड़की नहीं कर सकती, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस फील्ड में नहीं जा सकती हूँ। जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है। बारामूला के SSP ट्रैफिक रूरल रविंद्र पाल सिंह ने ड्राइवरों से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अपील की। SSP के हमरा DSP ट्रैफिक मुजाहिद अहमद और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। SSP ने कस्बे का दौरा किया और कस्बे में सूमो स्टैंड और बस स्टैंड पर कई गाड़ियों के ड्राइवरों से मुलाकात की। SSP ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ड्राइवर्स हमेशा ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। यहाँ पे आने का है कि एक तो अपने जो मेरे ट्रैफिक के
अहदेदार हैं उनसे मुलाकात करना, उनको ब्रीफ करना और फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेना रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्यूटर्स। तो पब्लिक ने प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उनका पता करना और कोशिश करना उनका उजाला करने की, और इसके साथ साथ पब्लिक को भी अवेयर कराना मेरा मकसद है, सो दैट एक डिसिप्लिन लाना ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज़ में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में। जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं अलग अलग फ्लीट पे जो रहते हैं, चाहे वो सूमो हो, चाहे वो ट्रकर्स हों, चाहे वो कई किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं, सो दैट यहाँ पे एक्सीडेंट जो है वो भी हम कटेल करें और एक ट्रैफिक का जो फ्लो है, रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक हैसल फ्री होना चाहिए। रंगों का त्यौहार होली किश्तवाड़ में जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस त्यौहार से मुतल्लिक मसनूआत फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने मसनूआत पर रियायत का ऐलान किया था। इस त्यौहार को मोहब्बत का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन लोग एकजुट होते हैं और सभी गिले शिकवे भूल जाते हैं। इस मौके पर किश्तवाड़ पुलिस की निगरानी में एक जुलूस निकाला गया, जो कोतवाल मोहल्ले से होता हुआ पुराने DC ऑफिस किश्तवाड़ से हदियाल चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। पूरे किश्तवाड़ के लोगों ने आज इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया और बहुत ही उल्लास से इस त्यौहार को मनाया गया। मैं सभी को, पूरे देशवासियों को किश्तवाड़ को इस होली के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। किश्तवाड़ में भी होली का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पे जगह जगह लोगों ने खुशियाँ मनाई और कहीं रैलियों की शक्ल में इस पर्व को मनाया। का बंदोबस्त तो रूटीन में एक रहता है हर किसी पर्व पर, हर किसी ऐसे मौके पर कि जब लोग ज़्यादा तादाद में बाज़ारों में आते हैं, मोहल्लों में आते हैं, तो उसके लिए हमारा सिक्योरिटी बंदोबस्त रहता है। SSP किश्तवाड़ के लिए ने उसके लिए काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स, सख्त ऑर्डर्स और हिदायतें दी होती हैं। CRPF जम्मू कश्मीर में इंतखाबात और अमरनाथ यात्रा को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। IG ऑपरेशन CRPF MS भाटिया ने त्राल में मीडिया के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। देखिए, जो भी इलेक्शंस हैं या आगे अमरनाथ यात्रा है, उसमें जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने के लिए पूरे हम लोगों ने अभी से शुरुआत कर दी है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी आयोजन होता है यहाँ पे किसी भी तरह का, चाहे वो चुनाव हो तो चाहे यात्रा हो, उसमें पूरी तरह से हम लोग तत्पर रहेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिक्योरिटी है, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। डिमेंशिया पर एक हालिया तहकीकी रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर में खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की 11% बुजुर्ग आबादी डिमेंशिया में मुब्तला है, जो इस रिपोर्ट के मुताबिक कौमी औसत से 4% ज्यादा है। आप देखिए न्यूज़ 18 के लिए शबीर मीर की रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। मुल्क की दीगर रियासतों की बनिस्बत जम्मू कश्मीर में डिमेंशिया का सबसे ज्यादा फैलाव है। एम्स दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडन कैलिफोर्निया की तहकीक से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में 60 साल से ज्यादा की आबादी का 11% डिमेंशिया में मुब्तला है। इस तहकीक के मुताबिक हिंदुस्तान में 7.4% बुजुर्ग आबादी डिमेंशिया में मुब्तला है, लेकिन जम्मू कश्मीर कौमी फीसद से बहुत आगे है। इस रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर में खतरे की घंटी बजाई है, क्योंकि यूटी खासतौर पर वादी कश्मीर के लोग पहले ही बहुत सी जहनी बीमारियों में मुब्तला हैं। प्रोफेसर डॉक्टर यासर राठर का कहना है कि डिमेंशिया सेहत का एक बड़ा मसला है और इस कदर ज्यादा फैलना एक बड़ी तशवीश है। ये तो बहुत अलार्मिंग है, पर्टिकुलर बिकॉज क्योंकि ये जो डिमेंशिया है इसका सिर्फ इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ या साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट नहीं है, इसका सोशल एस्पेक्ट भी, इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है। क्योंकि इसमें फिर ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं रहती है, पूरी फैमिली की प्रॉब्लम। ये जो इंडिविजुअल होता है इसमें फिर कंस्टेंट केयर गिवर की ज़रूरत पड़ती है और इसमें फिर बहुत सारा मतलब यू हैव टू बी कंटिन्यूसली सुपरविजन चाहिए ऐसे लोगों को, तो वो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है ऐसी फैमिलीज़ में। अदर दैन मेमोरी, लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स हो जाती है, कम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम्स होती है, लर्निंग में वो नई नई चीज़ें नहीं सीखता, तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज आती है उसमें, और मूड चेंज भी आ सकते हैं, स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखा जाए ज़्यादा मेजर पेशेंट्स में फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इश्यूज़ हो जाते हैं।
तिब्बी तौर पर डिमेंशिया की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ माहिरीन इस ज्यादा फैलाव को उस सदमे से जोड़ते हैं जो लोग तनाज़ात की वजह से मुख्तलिफ शक्लों में झेल रहे हैं। डॉक्टर शबनम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और GMC श्रीनगर में लेक्चरर कहती हैं कि माजी में होने वाले मुताले ने जम्मू कश्मीर में बहुत सी दिमागी बीमारियों के ज्यादा फैलाव को साबित किया है जो डिमेंशिया का सबब बन सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑलरेडी, जहाँ पे हमने बहुत देखा हुआ है कि जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, उनकी एक डायरेक्ट लिंक है ट्रॉमा के साथ, बी इट एनी सॉर्ट ट्रॉमा, ठीक है। और जो आप बात कह रहे हैं कि जो अभी पॉपुलेशन है दैट इज़ इन 60s नाउ, हैज़ बीन थ्रू द ट्रॉमा फॉर ऑलमोस्ट 3 decades नाउ, सो उसका भी ये इम्पैक्ट हो सकता है कि जो वो उनका पीरियड रहा है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा है। अगर यंग एज पे आप में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हों तो दैट पर्सन बिकम मोर वनरेबल टू डिमेंशिया लाइक इलनेसेस इन लेटर लाइफ, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चरल चेंज होती हैं ब्रेन में, पर्टिकुलरली हिप्पोकैम्पस में, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें भूलने की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेतस और सेहत के कुछ दीगर मसाइल जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं जो डिमेंशिया के फैलाव में माविर अवामिल के तौर पर काम कर रहे हैं। मर्दों के मुकाबले ख्वातीन में डिमेंशिया तकरीबन 2 गुना पाया गया है। इस तहकीक में ख्वातीन में डिमेंशिया की शरह 9% जबकि मर्दों में 5.8% है। अजीब तौर पर डिमेंशिया का फैलाव शहरी इलाकों के मुकाबले देही इलाकों में ज्यादा पाया गया है। डिमेंशिया सिर्फ एक सेहत का मसला नहीं है, बल्कि ये मामला समाजी भी है और मुआशी भी। समाजी इसलिए कि कई लोग ऐसे हैं जो डिमेंशिया के शिकार होते हैं और बुज़ुर्ग हैं और उन्हें घरों में तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स कई बार सामने आई हैं। हालांकि कश्मीर में इतने हालात अभी बुरे नहीं हैं, लोग अभी भी अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। मुआशी मामला इसलिए कि कश्मीर में पहले ही कई बीमारियां आम हैं और लोगों को अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा अद्वियात पे सर्फ करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम माहिरीन से रुजू करें जो जब भी अलामात हों या जो भी अलामात हों और जल्द से जल्द इसका इलाज करें। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।